Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. I am back with the another video. In this video we are going to start a very different topic, that is the family law, Hindu law, that is the law of maintenance. Now today we are going to start the law of maintenance under Hindu law, right? So we know that there is one Hindu law and another is Muslim law. Today we are going to talk about Hindu law and the maintenance under Hindu law. Okay, as you can see that there are so many dependents, right, in which they are dependent on somebody, right? So regarding this topic we are going to start. Now see, what is maintenance? I am just going to make you understand what is written over there. Maintenance means when you are providing all the essential facilities either to your wife, either to your parents, either to your children. Okay, maintenance means to maintain someone, fine, to give all the necessary things as in a daily life which is required to them. Now see, we know in a family, let's take the example of a family. There is a family in which there is husband, wife, two children and two mother and father, old parents. Now who is going to maintain to whom? Now see, son or the husband, he has the responsibility to maintain his wife, his children, minor children and his old parents, right? This is the maintenance. Now maintenance means when you are giving the financial support to the dependents of the family, those who are dependent upon you. Now maintenance includes like giving food, giving clothing, giving shelter, giving education and meeting all the medical expenses, right? That is written over there. This is the thing which is written here. When you give all the necessary things that is required to live a good and dignified life, it is called the maintenance. The purpose is not merely to ensure survival but to help maintain the clement existing standard of living. Now you have to give all the benefits, all the essential things that is required to maintain a good standard of living. Fine, not that expensive standard of living but a normal standard of living. Then we have maintenance can be granted during the pendency of matrimonial proceedings. Now see, there are two type of maintenance that we are going to discuss today. Firstly, I taught you about the basic maintenance meaning, what is the maintenance and what is the basic meaning of maintenance. I think you all got to know this. Now we have three types of maintenance: Hindu adoption and maintenance, Hindu marriage and section 125 of CRPC, right? तो होता क्या है कि जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस का तो सिंपल सा मतलब है कि आप उसको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो आप पे डिपेंडेंट है. बट मेंटेनेंस में भी तीन क्राइटेरिया होते हैं, वो आपने याद रखना है. पहला क्राइटेरिया मेंटेनेंस का होता है कि जो HEM जिसको बोलते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप किसी को मेंटेन कर रहे हो, आपने अडॉप्शन किया है, आप मेंटेनेंस जो है दे रहे हो, या फिर जो हमने पढ़ा था कि एक विडो जो वाइफ होती है या विडो गर्ल होती है, ठीक है, जो उसके इन लॉज होते हैं, दे हैव द ड्यूटी टू मेंटेन देयर डॉटर इन लॉ, वो चीज़ें होती है. एक हिंदू मैरिज एक्ट होता है जिसमें जो हस्बैंड होता है ही हैज़ टू मेंटेन all the family members equally and give the better standard of life. Then we have section 125 जो डिवोर्स के बारे में बात करता है कि इनकेस जब जुडिशियल सेपरेशन होता है या डिवोर्स होता है तो उस केस में हस्बैंड को मेंटेनेंस पे करनी ही होती है, राइट? सो ईच ऑफ दिस प्रोविजन जो होते हैं उनका अपना खुद का स्कोप है, खुद की एप्लीकेशंस है, राइट? नाउ हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट? अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? वाइफ कर सकती है, विडो डॉटर इन लॉ कर सकती है, चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट जो अभी मैंने आपको बताए.
वाइफ जो है, इफ़ शी इज़ इलिटरेट, इफ़ शी इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो हस्बैंड हैज़ द ड्यूटी टू मेंटेन हिज वाइफ। विडो डॉटर इन लॉ है, तो उस केस में जो उसके पेरेंट्स होंगे, जो उनके फादर इन लॉ है, वो उनको मेंटेन करेंगे। जो उनके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे हैव द ड्यूटी टू मेंटेन द विडो डॉटर इन लॉ। देन वी हैव द चिल्ड्रन। चाहे आपका वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो, चाहे वो आपके इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो, डजेंट मैटर, you have the responsibility, duty to maintain those children. Then we have the parents. अब यहाँ इस पे ना एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी पेरेंट्स पे। उसमें ये कहा गया था दैट सन हैज़ टू मेंटेन हिज पेरेंट्स, जो कि नॉर्मल सोसाइटी में अगर हम देखते हैं, एवरी सन हैज़ टू मेंटेन देयर पेरेंट्स अनटिल एंड अनलेस जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई इनकम या पेंशन नहीं आ रही। तो होता क्या है, इस पर एक डिबेट हुई थी कि वाई ऑलवेज सन नीड्स टू मेंटेन देयर पेरेंट्स व्हेन वी आर गिविंग द इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी टू सन एंड डॉटर, बट व्हेन इट कम्स to the maintenance part, why daughter is not giving the proper maintenance to their parents, which is obviously right. तो पेरेंट्स के केस में जो है उसमें ये कहते हैं कि जो लड़का है वो ही क्यों हमेशा पेरेंट्स को मेंटेन करे, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डॉटर ऑल्सो टू मेंटेन हर पेरेंट्स, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रू। देन वी हैव द अदर डिपेंडेंट्स ऑल्सो। अदर डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई डिसीज्ड है, ठीक है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आप पे डिपेंडेंट है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये वाइफ, विडो, डॉटर इन लॉ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स होते हैं। अब क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 कहता है हस्बैंड हैज़ टू मेंटेन हिज वाइफ। उसमें क्या होता है कि इन केस अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो इकट्ठे रह रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर, तो उस केस में वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस। बट व्हाट इफ द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली, तो उस केस में क्या होगा, विल शी गेट द मेंटेनेंस? वो क्या आंसर है कि वो मेंटेनेंस ले सकती है, स्टिल क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। तो इफ वाइफ इज लिविंग सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड ड्यू टू वैलिड रीजंस, जैसे आपका क्रुएलिटी है या डिजर्शन है, कोई ऐसी बीमारी है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, उस केस में वाइफ विल स्टिल क्लेम द मेंटेनेंस। और उसमें क्या होता है, अगर उसने कोई रिलीजन अपना चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, शी लूजेस द राइट टू मेंटेनेंस। इज दैट क्लियर? ये होता है मेंटेनेंस का वाइफ का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। देखो क्या होता है, द विडो डॉटर इन लॉ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन फ्रॉम फादर इन लॉ इफ शी कैन नॉट सपोर्ट हर सेल्फ डज। ओके, इसमें यही बताया गया है, इफ द डॉटर इन लॉ, दैट इज विडो डॉटर इन लॉ, इफ शी इज केपेबल ऑफ फीडिंग हर सेल्फ, देन इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द फादर इन लॉ टू गिव द मेंटेनेंस। अगर डॉटर इन लॉ खुद जो है वो अपना कमा रही है, खा रही है, खुद इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में फादर इन लॉ को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देन वी हैव द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सिंपल सी वही बात है, चिल्ड्रन है तो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट दोनों होंगे, और पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सन एज वेल एज द डॉटर ऑल्सो। देन वी हैव द मेंटेनेंस ऑफ द अदर डिपेंडेंट्स। दूसरे रिलेटिव्स होते हैं किसी डिसीज्ड के, जिनका कोई है नहीं आसपास, तो जो पर्सन है वो मेंटेन उनको करेगा। देन वी हैव मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें क्या बताया है मेंटेनेंस, अब ये डिवोर्स से रिलेटेड मेंटेनेंस है, याद रखना। ये जो ऊपर वाले थे अभी तक हमने पढ़े वो पॉजिटिव वे में मेंटेनेंस थे, ये नेगेटिव भी नहीं मैं कहूँगी, बट एक डिस्प्यूटेड मेंटेनेंस होता है, ठीक है। होता क्या है टेम्परेरी मेंटेनेंस में, टेम्परेरी मेंटेनेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेंट लाइट, सेक्शन 24। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है, जैसे अगर आपका डिवोर्स चल रहा है या जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट चल रहे हैं, तो उस केस में यू आर एंटाइटल्ड टू गिव द टेम्पररी मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आप मेंटेनेंस देते हो, ठीक है। जब आप उसको मेंटेनेंस देते हो, देन इट अप्लाइज इफ द स्पाउस सीकिंग मेंटेनेंस हैज़ नो इंडिपेंडेंट इनकम और सफिशिएंट। हस्बैंड जो है उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, चाहे डिवोर्स हो रहा हो, चाहे जुडिशियल सेपरेशन हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनको मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी, वो डिनाई नहीं कर सकते। देन वी हैव द अमाउंट इज डिसाइडेड कंसिडरिंग द इनकम ऑफ बोथ द पार्टीज। अब क्या होता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को टेम्पररी मेंटेनेंस देता है, तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस,
depending upon the income of the husband, lifestyle of the wife and much more factors. Then either spouse can apply for such maintenance. कई बार क्या होता है, वाइफ मेंटेनेंस मना भी कर देते हैं, आई डोंट नीड मेंटेनेंस, आई जस्ट नीड डिवोर्स, राइट. देन वी हैव द परमानेंट मेंटेनेंस पार्ट, सेक्शन 25, जिसमें आप क्या कहते हो, परमानेंट आप उसको मेंटेनेंस पे करते हो. इसमें भी यही होता है, या तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करो या आप लमसम एक ही बारी में पे करो. तो इसमें लिखा भी हुआ है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है या तो आप लमसम एक ही बारी में सारी अमाउंट दे दो जो लैक्स में जाती है, या आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो जो थाउजेंड्स में जाती है. मेंटेनेंस में कंटिन्यू टिल द लाइफ टाइम, जब तक वो वाइफ मैरी नहीं होती या मैरिज नहीं करती तब तक, जब तक दोनों में से कोई एक जिंदा भी होते हैं. तो देन वी हैव मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो यहाँ जब मेंटेनेंस की बात करी है टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उसमें यही बताया अगर माइनर चाइल्ड है तो उसको मेंटेन करना है, ठीक है. अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है बट वो मेजर हो गए तो भी उसको मेंटेन करना है. देन वी हैव सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. ऑफ कोर्स अब तो चेंज हो गया, बट ये मैं 125 सीआरपीसी का बता रही हूँ कि स्टार्टिंग यहीं से थी. अगेन वही बात है, हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस, यही चीज़ है. वाइफ है, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, माइनर चाइल्ड है. लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड है बट उनका कोई फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी है, और पेरेंट्स है दोज हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ. कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स है, दे वर वर्किंग अर्लियर, तो उनके जो पेंशन आ रही, उस केस में सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन पेरेंट अंटिल एंड अनलेस एक्सेप्शंस कुछ अगर होते हैं तो. देन वी हैव फीचर्स. फीचर्स जो है यहाँ वो बोल रहा है कि प्रोसीडिंग आर समरी एंड एम्ड एट स्पीडी डिस्पोजल. नाउ सी, कोर्ट ऑल्सो वांट्स कि उनका जो काम है वो क्या हो, जल्दी हो, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो, राइट. ऐसा ना हो कि जो उनका केस है वो लटकता रहे और वो एक ही केसेस पे फोकस करे. द आंसर इज नो. देन वी हैव द मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर मंथली अलाउंस टू द डिपेंडेंट, ठीक है. तो यहाँ क्या बोला है कि जो मैजिस्ट्रेट होता है ये मंथली अलाउंस भी बोल सकता है या लमसम भी बोल सकता है. कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जाती है. एक्सेप्शंस क्या बताया, इफ द वाइफ लिव सेपरेटली विदाउट reasonable cause or commits adultery, she is not entitled to the maintenance. Where there is the wife who is at fault, husband is not entitled to give the maintenance, ठीक है. Then we have factors considered by court while granting maintenance. बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो देखी जाती है while ग्रांटिंग दी मेंटेनेंस, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, पहला होता है इनकम एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी. हस्बैंड की क्या इनकम है, हस्बैंड की कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो देखी जाती है. जो वाइफ है उसका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो देखा जाता है. एक केस हमने देखा था जिसमें वाइफ का ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा था. एक मैंने केस पढ़ रही थी मैं कहीं, तो उसमें ये लिखा था कि husband was earning 50,000 a month and wife was having a very luxurious lifestyle where she used to spend at least 70,000 in a month. What magistrate said, court ने ये कहा that if you have such a high living standard, why don't you earn by your own, ठीक है ना. why you are dependent on your husband, you should earn your own in order to maintain your better lifestyle. देन हेल्थ और एजुकेशन देखी जाती है, नंबर एंड पेन के जाते समझना. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है मेंटेनेंस पे. एक है डॉक्टर कुलभूषण वर्सेस राजकुमारी. कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन टू मोल्ड द मेंटेनेंस. अब इसमें क्या बताया, डॉक्टर कुलभूषण वर्सेस राजकुमारी में ये बोला है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट टू ऑल्टर द अमाउंट ऑफ द इनकम. ये ऐसा नहीं होता कि वंस द कोर्ट हैज फिक्स्ड द अमाउंट तो इट विल गो ऑन टिल द वाइफ रीमैरी. आंसर इज नो. कोर्ट जो होती है वो ऑल्ट्रेशन कर सकती है मेंटेनेंस के अमाउंट को डिपेंडिंग अपॉन द हस्बैंड्स नेट सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर्स एंड लाइफस्टाइल. देन वी हैव रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, जिसमें ये कहा गया कि मेंटेनेंस इंक्लूड मोर देन बेयर सब्सिस्टेंट. इट एम्स टू मेंटेन द क्लेमेनेंट स्टेटस. द कोर्ट ऑर्डर द वाइफ टू पे द मेंटेनेंस टू हर हस्बैंड. कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के पास इतना नहीं मेंटेनेंस होता तो वो हाथ खड़े करता है, आई डोंट हैव एनी इनकम, आई डोंट हैव दैट इनकम, आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑन माई नेम, सो आई एम नॉट लाइबल टू पे द मेंटेनेंस. उस केस में इफ वाइफ इज अर्निंग मोर तो वाइफ विल पे द मेंटेनेंस इफ दे वांट डिवोर्स. और वो म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग होता है. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जिसमें ट्रिपल तलाक के बारे में बोला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो ट्रिपल तलाक है डज नॉट नेगेट मेंटेनेंस. राइट, अगर आपने ट्रिपल तलाक दिया भी है तो पहली बात तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. कहीं भी जाके कहीं भी खड़े और आप बोल रहे हो तलाक तलाक तलाक, दिस इज नॉट द वैलिड
procedure or way of giving talaq to somebody, and even if you give talaq, you have to maintain that wife, you have to give the maintenance. Then we have the सुखजिंदर सिंह सैनी वर्सेस हरविंदर कौर, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, जिसमें ये कहा गया था even if the husband and wife they are imparting their ways, they are parting their ways aside from each other, still they have the responsibility, they are liable to maintain the child, they have the duty to look after the child education and all. So this is very important, क्योंकि क्या होता है कई बार husband and wife में divorce हो जाता है, but the main effect goes upon the children. देन वी हैव द कंक्लूजन पार्ट, यहाँ जो बोला है इन्होंने, कंक्लूजन क्या कहता है कि द लॉ ऑफ मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ इज कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द, जनरली क्या होता है कि जो मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि हर एक पर्सन को इक्वल राइट मिल सके, एक इक्वालिटी मिल सके इन द सोसाइटी. हस्बैंड है वो अपना कमा रहा है, बट वॉट अबाउट द चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड स्पाउस, वेयर दे विल गो, इरिस्पेक्टिव की जो वाइफ है वो कमा रही है कि नहीं, बट बाकी के जो है वेयर डू दे गो, कहीं भी नहीं जाएंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड. सो व्हाई नॉट वी आर गिविंग अ बेटर लॉज टू प्रोटेक्ट दीज डिपेंडेंट्स. ठीक है, या सो दिस इज ऑल कंक्लूजन. आई होप आपको समझ आ गया होगा, पढ़ लेना. सो दिस इज ऑल विच इज़ taught in today's class. I hope आपको फैमिली लॉ समझ आया होगा, मेंटेनेंस के बारे में समझ आया होगा. ठीक है, तो ये मेंटेनेंस के बारे में सारा है. फाइन, तो कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. जो भी आपके आसपास कोई भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है लॉ स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू शेयर विद देम इन ऑर्डर टू गेट more clarity with the topics and all. So yeah, have a nice day.